Friends, it truly fills my heart with a sense of pride and pleasure when I stand before you on this very unique occasion of a very unique program organized by Mr. Rahul Karad, Ravi Chitnis, and all the conveners and the organizers. Especially when I stand before you to convey my feelings and a little bit of message for all of you who have taken admission into this World Peace University and the very essence and philosophy of what this university stands for. A brief glimpse was given to you just now when you saw that a person from India coming from a very small village called as Rameshwaram, not the Sri Lanka Rameshwaram, but Rameshwar in the Marathwada region, hardly a 2,000 population village, coming from that very small place, and a person who never wanted to be an engineer, he becomes an engineer, he becomes a teacher, and he becomes a founder of an institution called as MIT. यूनिवर्सिटी बन जाती है और बातें करता है विश्व शांति की. I am trying to just deviate your attention that what is exactly the divine intervention of that Almighty God, whatever you call it. But being an engineer, friends, this very unique or a small event which you just saw, it was not the honor for me. It was for the thought and the thinking and the philosophy. When I was tempted to use the word, philosophers sent Jnaneshwara to philosophers, scientist Albert Einstein. मुझे पता नहीं भाई ये सोच कैसे आई, लेकिन मुझे ये आपके सामने रखने में बड़ी खुशी है कि myself being an engineer from mechanical engineering, particle physics, I do understand the Google, the Facebook, the network, or all the modern tools which you have been trying to experience very easily. But let me make a comment to you, friends. In this very film, you must have seen that I had the fortune of standing in the very same hall called as the Fullerton Hall in Chicago. As I told you, friends, the great noble son of India, the great noble son Swami Vivekananda, has been my ideal. और आपको शायद सबको मालूम है कि 11 सितंबर 1893 की बात है, when your own brother, that time, 130 साल के पहले, क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, कैसा होगा शिकागो, और तुम्हारा एक भाई यहाँ से हिंदुस्तान से निकल के वहाँ पहुँचता है. And among the 5,000 world delegates of religions, all the religions of the whole world, the great thinkers, philosophers, men of science, every field you think of, and the greatest philosophers who have understood what the essence of life is, he is standing in that audience, and when he utters the very first sentence, which has been still vibrating the whole world. And when he says to all those sisters and brothers of America, you know it very well. मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये टाइम है कि जब थोड़ा बोलने का मौका है, एक दूसरे के मन की बात समझना या दिल की बात भी समझना है. इसलिए मैं आपके सामने ये रखने का प्रयास कर रहा हूँ
When he said that time, union of science and religion, of spirituality alone will help to bring harmony and peace to mankind. सारी मानवता की बात है, भारत की बात नहीं, किसी एक धर्म की बात नहीं. लेकिन when he uttered this word, the whole crowd and the greatest men of that first world parliament of religions, they have a standing ovation for 2 minutes to your own brother. And those words of wisdom still linger in the whole world. And that has come true. But thereafter he utters another word, which I have been always telling the same thing again and again, nothing new. But when he says that time India was in the clutches of the British, हम पारतंत्र में थे भाई. हमारी भारत पे इतने बड़े देश पर ब्रिटिश राज करते थे. द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ दैट टाइम. अभी ग्रेट ब्रिटेन नहीं रहा. But still, those men with the sense of discipline, character, and the sense of duty, जिसे बोला जाता है कि करेज भी है, कन्विक्शन है, बट लेकिन डिसेंसी एंड डेकोरम भी है, ऐसा एक दास सारी दुनिया के half the world they were ruling, and India was one of them. And then Vivekananda tells the world, and he gives an assurance, and he says, मेरी भारत माता से, give me a few men with the muscles of iron and nerves of steel, and say in the face of Mother India, गर्व नहीं, स्वाभिमान की बात है. यह सबसे बड़ा समझने की चीज़ है भाई. बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मुझे नाज है कि I could understand, I could read what स्वामी विवेकानंद spoke. आप भी कभी पढ़िएगा भाई. आपको कम्युनिकेशन भी सीखना है. कम्युनिकेशन and if making it effective communication. बोलना ठीक है, लेकिन बोलना कैसे हो भाई. प्यारा बोल होना तुम्हारे मुख से. तो इसी सुंदर कहानी है. आपको इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, मैं चाहूँगा कि ये सारी छोटी छोटी बातों का मतलब और मकसद समझने की कोशिश करो. And what a good fortune, friends, that when I started understanding the new words of wisdom spoken by the greatest noble scientist of the world, मैं भी एक गर्व से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान में रखना, philosophers and ज्ञानेश्वरा to philosophers and डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, श्रोडिंजर, पेनरोज, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जिनके मुख से अभी अभी जाने से पहले उच्चारण हुआ है. क्या उच्चारण हुआ? All the greatest scientists of the whole world, whether it's America or the Britain or the Germany or any other nation, including India, सारे दुनिया के सभी साइंटिस्ट, philosophers and thinkers have started speaking the language of truth. ज्ञान की भाषा है भाई. ज्ञानमयो विज्ञानमयो ऐसा एक शब्द है. ये भारतीय संस्कृति का लक्षण है. What Mother India stands for. गलत फहमी से पुरंदरदास हो, कनकदास हो, ज्ञानेश्वर हो, तुकाराम महाराज हो, नाथ हो, कबीर हो, ये नाम ले लो. पढ़ने की कोशिश करो. पहले पढ़ो और बाद में क्रिटिसाइज करो, करना है तो. लेकिन the words which they have spoken, the great philosopher saint of Maharashtra, Sant Tukaram Maharaj, when he says, Anurenu Thokada, Tuka Akasha Evda. He speaks one word. He is not educated. He has no PhD. He has no engineering degree. And he says, I am the smallest of the smallest of the small particle of the universe. But what type of particle? It can encompass the entire universe. ब्रह्मांड को एनकम्पस करने वाला वो मैं. बड़ी सुंदर भाषा है भाई.
और सुंदर मीनिंग है उसके पीछे. Every word they have spoken, it is not only philosophical or religious speech, it is a very scientific and logical and philosophical speech. I say scientific. The techniques which you are talking about, the Google and the Facebook, Vivekananda had told at the last speech in America, 4 साल रहना पड़ा भाई. विवेकानंद जी 130 साल के पहले, he was being called for every city in America for delivering a speech. Why? क्या था भाई विशेष उसमें? तो मैं आपको बोलता हूँ, it was very scientific, logical, philosophical, और दुनिया के हित में था. समाज कल्याण की बात होती थी, विश्व शांति की बात होती थी. उनके मुख से जो शब्द निकलते ऐसा सुंदर है भाई. There are 8 volumes of Swami Vivekananda which speaks on all the scientific innovations and describes the whole world, and he narrates the principles. कभी पढ़ो भाई, इंजीनियरिंग के साथ, मैनेजमेंट के साथ, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आपके माता पिता ने आपको यहाँ भेजा है, बहुत पैसा दिया है ये संस्था में आने के लिए. Your parents, the mother and the father, with so much of feelings of satisfaction, they have sent you to this university. And maybe fortunately, with the efforts of all these people, Rahul and many others people, Mangesh, everybody, let me tell you, this is the first university in the whole world called as the MICE, MIT World Peace University. ये शांति की बात है, समाज कल्याण की बात है. रास्ता कौन सा है भाई जिसका उच्चारण किया गया अभी अभी? ये जो मेरे सामने छोटी किताब है, मैं चिटनीस सर को रिक्वेस्ट करूँगा, ये किताब सब बच्चों को बांट दो भाई. हमारे सेलार मामा का योगा का किताब भी बांट दो. ओम शब्द जो यूज़ किया, ओम का मकसद क्या है? ओंकार ध्वनि क्या बोलता है? ओंकार में बहुत सुंदर चिंतन है इसका भी. यू म, मैकेनिज्म एक ही है भैया, ये मैकेनिज्म है. और मैकेनिज्म का उच्चारण ओपन करना, देन ब्लो करना एंड क्लोज करना, 3 क्रिया है. ये साइंटिफिक है, ध्यान में रखो भाई. मैं इंजीनियर के नाते बोल रहा हूँ. फॉरगेट अबाउट द फाउंडर एंड द प्रेसिडेंट, वो गर्व करने की बात होती है. लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि इस शब्दों के उच्चारण का चिंतन आप करो. तुम्हारे इंजीनियरिंग के साथ जो भी सब्जेक्ट आप सीखना और बड़े होना चाहते हो, बीइंग अ मैनेजर और एनी अदर पोजीशन, बट इफ़ यू कैन डेवलप योर पर्सनैलिटी, जो इस संस्था में हमेशा बोला जाता है, टू डेवलप द विनिंग पर्सनैलिटी. एक शब्द है इस संस्था में जिसे विनिंग पर्सनैलिटी बोला जाता है. क्या है भाई ये विनिंग, कैसे बनता है? तो यू शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, बट स्पिरिचुअली एलिवेटेड. 4 गुणों का जिक्र है. और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विकार, विकृति और विकल्प, ये बड़े अवगुण है भाई. इनको कम करने का प्रयास करो. आई थिंक यू कैन डेवलप योर ओन पर्सनैलिटी. और आपके माता पिता को आनंद हो भाई. वो राह देख रहे घर पे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कैसी बने. दुनिया देखती रहे, लेकिन कभी कभी जब गलती हो जाती है, पागलपन हो जाता है, डिबॉचरस बिहेवियर हो जाता है, तो आपके माता पिता बोलेंगे साला ये गधा निकला, साला नालायक है, ये नहीं जन्म लिया होता तो अच्छा होता. बेटी के बारे में कोई डिबॉचरस निकली तो माँ बोलेगी मर जाती तो अच्छा होता. ऐसी बात जीवन में नहीं होनी चाहिए. यू शुड प्रूव यू आर ए वर्दी सन एंड अ वर्दी डॉटर. कुलीन कन्या बोला जाता है इसको. नाम क्या है? कुलीन कन्या, कुलवान पुत्र. ये भारतीय संस्कृति का एक छोटा सा दिशा देने का मकसद है. मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इससे ज़्यादा क्या दे सकते हैं भाई.
आपके माता पिता ने आपको भेजा, इंजीनियरिंग पढ़ो, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ो, and that very word, let me tell you, I just forgot this regarding the Om I was talking to you. The new equation has been given to the whole world community. Om tending to E, the energy, and equal to mc square. ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है भाई. E equal to mc square is an equation narrated by that great scientist of the whole world, Einstein. And when Einstein speaks this, he speaks only the truth. सत्य क्या है भाई? ज्ञान की भाषा क्या है? जिसके बारे में, ये डोम के बारे में एक शब्दों का उच्चारण किया इंट्रोडक्शन करते वक्त, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये क्रिएशन कोई अपना नहीं, वी आर इंस्ट्रूमेंटल. करने वाला कौन सी शक्ति है, कौन सा आदर्श शक्ति है, बड़ा डिफिकल्ट है, उस पर चर्चा कर सकते हैं कभी. लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द होल वर्ल्ड, मैं फिर से बोलता हूँ, ये गर्व से नहीं, इट हैज़ नो फाउंडर, इट हैज़ नो आर्किटेक्ट, नो प्लानर, नो डिज़ाइनर, नो बिल्डर. कैसे बना, जाके देखो तो सही, संवाद करो. जो स्टैचूज़ है ना वहाँ खड़े, उनसे बातें करना सीखो भाई. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसे अभी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लेबोरेटरी कहा गया है, आध्यात्म शास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, यह नामकरण इन द नोन ह्यूमन हिस्ट्री, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वेरी सेंटेंस हैज बीन अटर्ड नॉट बाय मी, बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी. और जो सम्मान देखा आपने अभी, वो मेरा सम्मान नहीं था भाई, मैं जिस राह पे चल रहा हूँ ना, उसका सम्मान है. वो संत ज्ञानेश्वर जी हो, संत तुकाराम हो, या आइंस्टाइन हो, या मेरी बड़े बहन हो प्रयाग का त्याग मूर्ति. त्याग और समर्पण की भाषा होती है. ये जो प्रोग्राम बनाया है राहुल ने और चिटनीस साहब ने एंड द कन्वेनर्स, हैज़ अ वेरी पर्पस बिहाइंड. संवाद करने की बात है, समझने की बात है, कम्युनिकेशन की बात है. और मैं जो आपसे बोला कि इसमें से संवाद होता है, संशय नहीं. संशय होता तो आप खत्म हो जाते हैं. संशय आत्मा विनश्यति, ऐसा सिद्धांत है. ये जो सत्य नारायण, ये पूजा नहीं, ईश्वर एक ही सत्य है, इसका मतलब है सत्यनारायण. ये शब्दों का चिंतन करने की कोशिश करो. और शायद मैं इतना बोलूँगा कि आज के जो मेहमान हैं हमारे, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ. जहाँ भी बच्चे किसी रूम में बैठे, ऐसे भी मैंने सुना, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ. एंड ओनली से कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स. आपके माता पिता को प्रणाम बोल देना. धन्यवाद.